Since we are talking about children, I'm talking about children. आप बोले थे palatable, ये तीनों सिर्फ पंचतिक्त घृत थोड़ा कड़वा है, लेकिन उसको हम अगर रोटी बनाने में डाल दे और वो बच्चे को दे दे, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और वो पंचतिक्त घृत अपना काम कर लेगा. इस तरह हम कर सकते हैं. थैंक यू सर. Thank you, madam. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Hema Malini, Dr. Hema Malini from Chennai. Welcome, Dr. Hema. Ayurveda for holistic children development. Thank you, sir. YouTube link will be separately broadcasted. Welcome, Dr. Hema. Just a minute. As long Dr. Hema Malini joins, I just thank Dr. Devashish Bharadwaj for his excellent presentation and also inputs of Madam Vaidya Parul Joshi ji, so that these things are to be taken in practice. And then only, because only saying this, that these things are doing as a lowering down agent of the raised sugar. That's another issue. But as far as the vital question raised by Professor Pawan Sharma ji, that whether any ingredient is responsible to regenerate the beta cells, that is very, very important, because that is the anatomico-physiological activities, not the therapeutic activity. And for that, if Daru Hydra is one thing, or any such thing which is being tested and the research is labeled to the international platform, then definitely a great message will go from the Ayurvedic side. This is what my submission is. So all the great distinguished scholars, our guest speakers, those who joined today on the Ayurvedic day, their inputs are saluted, and we also thank all these our Madam Rathi, Madam Sunita, and Dr. Devashish. Thank you so much. Over to Pawan Sharma. Oh, Hema has joined. Thank you. Thank you. Thank you. Over to Sharma. Good evening, respected dignitaries and speakers, and happy Children's Day to all the people out here who are listening, because we all have an inner child deep inside. The child of Esther years. All the senior citizens, we are all the child of Esther years. So you can wish us all. Thank you. Irrespective of the chronological ages. Great, Agni. Okay, sir. So, as our Ayurvedic aim, the aim of Ayurveda, Swasthasya Swasthya Rakshanam Aturasya Roga Nivaranam. First, I'll concentrate on the Atura part, because I think this is the need of the hour, where we see a lot of health seekers approaching us in the early 20s and even below 20s. So some of the clinical experiences, what we see in our day-to-day practice, I may share here. So first, we see early menarche cases a lot nowadays. Early menarche, and this leads to early menopause too. So early menarche and PCOD cases, obesity, these are the places where the female children are getting affected a lot. So here we see the intrusion of metformin given in a very early stage. So I personally feel we have to work on this area with our Ayush practices. And then comes insomnia. Even children are suffering from insomnia. This is really a very challenging thing to see in our day-to-day practices. That is difficulty falling asleep. So they are into the intrusion of social medias and some other activities, and they go into it, deep into it, with the lightings. As we very well know, the melatonin hormone production lessens, and this makes them the
timing for going to sleep becomes very, very late. So Dinacharya also comes here. So this is another part we see in the day-to-day cases. And then comes ADHD, attention deficit hyperactive disorder cases we see, and then skin-related changes, respiratory, according to the climatic changes, and secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea is again a problematic thing with the female children. So to sum it up, we see secondary amenorrhea, PCOD cases. So here we use Brahmari mainly because that helps in the HPO, maintaining the HPO axis. So the Brahmari is very well used in these cases. And then in obesity, we use asanas. Umpty number of asanas are there to maintain the BMI. And then in certain other cases, I also see certain cases internationally with references. One particular case, it is a very distinct case where that girl is in the 9th grade. She lives in California, Dublin, and her mother contacted me that she had positional vertigo. She had vertigo, some dizziness. And then I found out that it must be a positional vertigo with complete history taken. And they were about to go for MRI scan. And then I said, initially, before going to MRI, let me take the complete history. And with that history, I came to know that she was with the habit of taking coffee daily and along with processed chips items. So whenever she returns back from school, she was in the habit of taking these two things regularly. So I said that maybe this must be an intrusion of pitta, increase of pitta and pitta and vata pittam. So I said then to reduce the intake of the food items, and along with that I gave certain mudras and pranayama, mudra, mahashiras mudra, pranayama, anuloma viloma, and along with Brahmari, only simple things, and along with that Dhanvantram Gulika and Abhipatti Chula. You were able to get it online, and the results were amazing. Actually, the episodes of vertigo came down, and at last the vertigo completely stopped, and her mother was completely thankful for this. This is one particular case. What I need to say is Nidana Parivarjanam. We have to go deep into the Nidanam because we miss it a lot, and we go for many screenings, unnecessary screenings, and this makes the health seeker to go with so much of stress in the very early age. So much of stress is unnecessary, I guess. So this is one particular case, and one more case, and she lives in Leicester, UK, and she's a PG student, and she suffers from depression due to her personal reasons. For her, I use this Sapta Chakras treatment. No medicines for her, only with the pranayama and the mindfulness techniques. And she has, even in her case, we have got a lot of improvements, and these are shared in the reviews in my clinical site. And one more case is she takes the sessions regularly every week for a healthy well-being. She's a Sudanese girl, and she now resides in Georgia, and she does her allopathic medicine. Even though she does allopathy, first year, she's doing MBBS first year, she's more interested into our AYUSH systems. And I have prescribed Ashtachurnam for her, and she's also taking. So these are the cases where our AYUSH have reached far off places. And now coming on to the Swastha part. So these are the Athura part and Swastha part. I prefer to combine with the Panchakoshas and the holistic thing. So Panchakoshas, as we very well know, Annamaya and Pranamaya with the physical entity,
and Manomaya with the psychological, that is mental entity, and then Vijnana is intellectual, and then spiritual is our Anandamaya. So the Pancha Kosha theory is correlating here, and one by one we can browse, we can see in a very fast manner. So first comes the Annamaya. The Annamaya, we see the concept, eat right, sleep tight. So the food should be taken in a proper timing. So as our Pavanji said, the timing of the food is very, very much to be noted, because children nowadays are sleeping very late intake of food, very late to sleep. So that disrupts the circadian rhythm in the early stages itself. So this leads to all the unnecessary early menarche. All these things are starting from the day-to-day activities. So next is the breakfast. So awareness of breakfast should be given to each and every child, because many of the children are skipping their breakfast due to some or the other reason. So this is another. And then we can see this one more emotional concept. Here in India, we have that stuffing of food to the children without even knowing the Jirna Nirpayam. So before the prior food is completely digested, parents have the habit of stuffing food to the children, having an idea of giving more nutrition to the child. So that must be noted by every parent. And so sleep and food we have covered now. And next, coming on to the physical activity. Definitely 15 to 20 minutes of physical activity is needed for every child per day, or else walking or swimming or cycling, some or the other physical activity is definitely needed to maintain the proper metabolism of the body. And then Pranamaya Kosha. Pranamaya, here we use pranayama. So from the 7 to 8 years of age, we can start pranayama to any child. Mudras can be started at 5 years of age, but pranayama 7 to 8 years, we have to wait for the complete physical development of the lungs. So I recommend Brahmari very much to all the children, because this helps in the academic purpose also. As we have seen in our previous sessions in the yoga global way forward, I have explained about this Brahmari. So it helps in the academic performance of each and every child. Okay, then and comes the in between the Manomaya and the Vijnanamaya, we have in between the Pranamaya and the Manomaya, we give importance to the posture. The posture, this also we have already seen in our previous sessions. Posture maintenance is the most important from the early age, because this helps in the prana to flow in without any interruption. So if the posture is right, our breathing will be very much right. If our breathing is right, our thoughts will be right. If our thoughts are right, our actions will be right. So this comes in between the Pranamaya Kosha and the Manomaya Kosha. In the Manomaya Kosha, we see the mindfulness in each and every activity we do. So eating, drinking, walking, reading, whatever activity we do, if there is mindfulness, and when we teach the mindfulness to every child, this will pave way for a productive life for them. So this comes in that is nothing but mindfulness is nothing but this is not a very big concept. This is just being in the present, right here, right now. That is the essence of mindfulness. So next comes Vijnanamaya Kosha, and in Vijnanamaya Kosha, we see the aspect of intellect. So here the aspect of discipline also comes, the Sadvrita, Sadachara, everything comes in this. So when there is desire for good things, we get the right direction. When there is a right direction, then and when we give good dedication to that,
we will get a good determined child. So the four Ds: desire, dedication, direction, dedication, and determination. These are the four Ds, this which I have coined for the children. And one more thing is grade, GRADE. Actually, today I was invited to preside over a function, and over there I gave this speech. This is like GRADE. G is gratitude, R is resilience, A is altruism, D is determination, that is dauntless, and E is empathy. These 5 things, if we try to give to a child, definitely our future generations will be in a very productive way. Nowadays children are taking everything for granted, but that G should be for gratitude. GR is resilience. Whenever we fall down, the child should have the inner courage to get up and bounce back. GRA is altruism, selfless care, and determined. He or she should be very much determined. And empathy. Empathy is very much needed nowadays because that gives a meaningful life. So this is for Vijnana. And Ananda is, we have to preach from the early age the chantings, at least Om chanting, Aum chanting, even if not long chantings or recitings, just Om chanting will pave way for a productive life for a child. So the Panchakoshas have an impact in the holistic development of a child. And with few other things, I'll try to wind off as it's getting very late. So next is EYFS. This is the scheme where the Westerners are following early age foundation stage. That is, when we give a good foundation, it will be easy for us to build up more with that. So they try to give the proper communication with the languages, learnings, support and development in this EYFS scheme. And in India, we use ICDS, Integrated Child Development Services Scheme. And I was fortunate to give a speech in 2015 to the 9th grade students in the rural area of Tiruvannamalai Government School. In the name of the topic, health and hygiene for adolescent children. So here also we have a lot of schemes like that. And one more thing is, in 2020, there was a MOU agreement, mutual agreement between the Ministry of AYUSH and the Ministry of Women and Child Development, that in the Anganwadi centers, there must be medicinal gardens setting up of medicinal gardens in the Anganwadi centers, and also to conduct yoga classes regularly for them. So these are the areas we see that developments are seen in the holistic way for the development of the children. And long story short, the takeaway message for this session will be Acharati iti acharya. Once when we are the role models for them, they will definitely start following us. And 2 things we have to give to the child is ashvasanam. Whatever it may be, let us give them that care and confidence to face the things. And then we have to probe deep into the nidanam to find out what is the cause and treat that. So thank you all for listening with patience as the time is running off. Thank you, Dr. Hema. Thank you. We know in your area heavy rain is there. Thank you. Thank you very much, Dr. Hema. Thank you very much. Now I would like to request Vaidya Umang Pandyaji. Vaidya Umang Pandyaji is renowned name in Jamnagar. He is thinking for a child before he takes birth.
So Garva Sanskar, he is expert. He is very renowned person. So anything regarding his introduction will be a lamp in front of a sun. So thank you very much, Umang ji. Welcome. Ultimately, we are here. Thank you. ओके सर, आपका भी आभार। मैं हिंदी में बोलूं तो चलेगा सर? चलेगा सर, अपना प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म है। सर ने मुझे आमंत्रण दिया था भोपाल जब मिले थे, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा डिले जुड़ सका। आप सबका आभार, आयुष का भी आभार, आयुष समृद्धि का। मेरा अभी आज का टॉपिक है आयुष फॉर डायबिटिक चिल्ड्रन, और उसके साथ में विषय होलिस्टिक अप्रोच। तो मैं आयुर्वेद पढ़ा हूँ, आयुर्वेद समझा हूँ और आयुर्वेद का काम कर रहा हूँ प्रभु कृपा से। तो उसमें आपको सबको पता ही है कि प्रमेय जो होता है वो धातुगत विकार है। अग्नि की उष्णता से धातुगत जो मल है, जो क्लेद स्वरूप है, वो पिघल के वायु आकर्षण से बस्तीगत आके बस्ती में से बारंबार उसका प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता के साथ प्रभाव होता है। इसको हम प्रमेय कहते हैं, प्रकृष्ट में कहते हैं। तो ये धात्वाग्नि क्लेद का विकार है। इसमें सभी को दूष्य, दोष दूष्य सभी को पता है। 20 प्रमेय के भाग पता है। तो उसमें अलग अलग आप समझेंगे तो बच्चों में तो धात्वाग्नि की वृद्धि होती है 12 साल तक। उसमें तो रस, रक्त, मांस, मेद ऐसा होता है, तो मेद का प्रभाव ही ज्यादा होता है। और मेद से उसमें प्रमुख दूष्य कफ को बताया है। तो प्रमुख दूष्य कफ तो बाल्यावस्था में साहजिक होता है एस पर आयुर्वेद। 12 साल तक उसमें कफी का प्रभाव रहता है। कफ प्रभाव, धात्वाग्नि मांद्यता, धातु का उत्पत्ति होना, उसमें तो शुक्र, अस्थि, मज्जा ये सब बनना बाकी होता है। आप सबको भी पता है कि बच्चे के जो जॉइंट्स है वो सॉफ्ट रहते हैं, वो सुकुमार रहते हैं, उनकी मेदस्विता भी ज्यादा रहती है। 12 साल के बाद शीर्षस्थ जो 5 अस्थि है उनका संधान होता है। 12 साल तक उनका संधान भी नहीं होता। तो उसमें अस्थि धातु का जो कपालास्थि या तरुणास्थि, उनका भी विकास उतना नहीं होता। उनकी हाइट बढ़ती है, लेकिन उनका बोनी ग्रोथ, मज्जा ग्रोथ, शुक्र ग्रोथ वो सभी नहीं होता। प्यूबर्टी स्टेज के बाद ये सब धात्वाग्नि वृद्धि होती है। उनकी धात्वाग्नि रहती है, लेकिन वो शरीर को पोषण देने में ही ज्यादा रहती है। तो जनरली जो हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो प्रमेय युक्त जो बच्चे आते हैं, उनमें समस्या उनके कुल की प्रभाव के रहती है। तो कुल प्रभाव में कैसे हम गिनेंगे? तो आचार्य सुश्रुत एवं आचार्य चरक ने और अन्य आचार्य ने भी शारीरिक स्थान में बीज भागावयव की उन्होंने बात बताई है। और उसमें कुष्ठ, प्रमेय है, अपस्मार, ये अर्श, ये सब मातृज या पितृजगत उन्होंने बताए गए हैं। यानी बीज भाग तक वहां के दूषित होंगे। तो अब बीज भाग और बीज भाग अवयव का दूषित होना और प्रमेय की संप्राप्ति, ये थोड़ा समझना चाहिए। तो जैसे बीज भाग और बीज भाग अवयव है, तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने एलोपैथी का अच्छा विवरण दिया। लेकिन हमने जब संहिता देखी, ये विषय उन्होंने शर्मा साहब ने दिया, तो मैंने भी थोड़ा काश्यप और सभी देखा। उनमें कहीं में भी उलझ प्रमेय का या बच्चों को प्रमेय होने का कहीं ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? कि तब ये व्याधियां उतनी डोमिनेंट नहीं थी। आज के युग में ये डोमिनेंट हो गई। जुवेनाइल डायबिटीज आज के युग में कॉमन है। तो जुवेनाइल डायबिटीज में जब वो गर्भ संस्कार की हम बात करते हैं, जैसे अभी तो बहुत सारा पॉपुलर हो गया है, लेकिन उसमें भी हम बीज भाग अवयव की शुद्धि के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। हम सिंपल वमन विरेचन करवा के उनको रसायन वाजीकरण क्रम दे के बात कर लेते हैं। लेकिन जो अभी आप समझिए कि जो बच्चे के फादर में सुषुप्त अवस्था या लीन अवस्था में अगर प्रमेय का बीज है और उसकी माता में भी प्रमेय का बीज लीन अवस्था, सुषुप्त अवस्था में रहता है, ये फैमिली में रहता है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो मातृगत पीसीओडी या और गर्भाशय के जो कफयुक्त विकार है, तो उनकी माता के फादर को यानी बच्चे के नाना को भी प्रमेय का कहीं ना कहीं लक्षण या संभावना या प्रमेय स्पष्ट रूप से मिलता है।
तो ही उनको पीसीओडी ये सभी व्याधियां होती है। तो हम और स्त्रियां भी आप देखिए तो मेद व स्रोतस की दृष्टि उसमें ज्यादा रहती है, इसलिए ओवरी भी और गर्भाशय भी उनका प्रदुष्ट रहता है। तो ये सब बाबतें हम भूल जाते हैं, हम सिंपल ट्रीटमेंट दे के उनको छोड़ देते हैं। जब व्याधि उनका अवस्था जब बढ़ती है, जब धात्वाग्नि बढ़ता है, जब धातु की वृद्धि होती है, वृद्धि अवस्था में बच्चा आता है 3-4 साल के बाद, तब ये सब हमको लक्षण मिलता है। इसमें हम इंसुलिन वो सब भी सोचते हैं, लेकिन हार्मोन्स की बात आयुर्वेद में कहीं नहीं बताई गई। शर्मा साहब थे जब सेमिनार में, तब हमारी बात हुई थी कि रस की उपधातु स्तन्य आर्तव है, स्तन्य आर्तव हार्मोन्स से रिलेटेड है एज पर एलोपैथिक व्यू, वेस्टर्न व्यू, लेकिन हम उसको उपधातु में मानते हैं। तो हम जो अग्नि का जो अलग अलग रूपांतरण है, धात्वाग्नि, भूताग्नि और फिर धात्वाग्नि, उसका जो रूपांतरण है उसमें हम हार्मोन का संकलन समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से कहीं निर्देश नहीं है। तो ये भूताग्नि के बाद जो धात्वाग्नि की प्रक्रिया में जो क्लेद धातु का इतना रोल नहीं रहता, लेकिन जो बच्चों का जो आहार का चयापचय में और आहार का जो सार कीट विभाजन में सार का संग्रह होना और कीट का संग्रहण न होना और शरीर में स्वेद, मल और मूत्र से बाहर निकलना, ये स्वाभाविक होता है। लेकिन ये सार कीट विभाजन की क्रिया बच्चों में धात्वाग्नि दृष्टि से, प्रमेय धात्वाग्नि जो उनका जो बीज भाग अवयव वो धात्वाग्नि दृष्टि से ये होता है। वो कैसे? अग्नि ही मूल है शरीर का, आत्मा का, वृत्तियों का, मन का, इंद्रियों का, हर एक संस्कार का अग्नि ही मूल है। इसलिए हम अग्नि का बाह्य साक्षी, आंतरिक साक्षी से हम ये काम करते हैं। तो अग्नि जब माता पिता जब संसर्ग करते हैं, तब उनके कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि लीन दृष्टि रहती है आहार या विहार में, कुछ श्राप भी रहता है और ये उनको पता भी नहीं चलता। हम आयुर्वेद में इतने साल से हम काम कर रहे हैं, हम डीएनए पे काम कर रहे हैं, प्रकृति पे काम कर रहे हैं, जीन्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये अब तक तय नहीं कर पाए कि वो आयुर्वेद में हम जीन्स को कैसे कोरिलेट करें या एलोपैथिक में जीन्स से कैसे कोरिलेट करें। लेकिन गर्भ संस्कार करने से ये विकृति दूर होती है, हमको स्पष्ट पता चलता है। तो जब तक आहार का और विहार का माता पिता में, उसमें गंगाधर ने तो इतना स्पष्ट कहा है कि शुक्रच्युति काल यानी शुक्र क्षरण काल में, ये आत्मज भाव में मैं गंगाधर ने वर्णन किया है कि शुक्र क्षरण काल में सात्म्य और आहार विहार का प्रभाव पितृपक्ष में ज्यादा पड़ता है। अगर उस समय आहार में कफ वर्धक या मेद दृष्टि वाला आहार लिया है, उसको पता भी नहीं है, तो बीज दृष्टि हो गई। और बीज दृष्टि के कारण आगे प्रमेय की संभावना भी आगे चली गई। वो लीन दोष में प्रवृत्त होकर आती है। नाड़ी परीक्षण जब हम करते हैं तब वात से हम माता का स्थान गिनते हैं और वात से ब्रह्मा का स्थान भी गिनते हैं गुरु नाड़ी में। पित्त से पिता का स्थान गिनते हैं, पितृस्थान गिनते हैं, और पित्त से आगे देव में विष्णु स्थान गिनते हैं। कफ से गुरु स्थान गिनते हैं और आगे क्या जब गुरु नाड़ी होती है तब कफ से शिव का हम समझते हैं। तो अब हमको समझना है कि देव जो चिकित्सा करे या हम वीर सिंह लोग का जो ज्योतिष का आधार ले या अन्य जो कर्म विपाक संहिता का आधार ले, तो उसमें कौन सा कोप होगा, पितृज कोप होगा, मातृज कोप होगा या गुरु कोप होगा। तो उस हिसाब से पहले तुमको परीक्षण करके समझना पड़ेगा। उसमें कुंडली का भी भाव स्थान देखे तो जो कफवर्धक या पित्तवर्धक यानी अग्निवर्धक जो ग्रह है, अंगारक ग्रह है या कफवर्धक गुरु ग्रह है, तो उनका कहाँ प्रभाव चल रहा है, क्या दोष है, क्या सर्प दोष से उनके कुंडली में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे उनका आहार विहार का संतुलन बिगड़ा, उस हिसाब से हम देव कर्म करें तो रिजल्ट मिलता है। मैं जनरली ऐसे जो बच्चे आते हैं उनको मैं एक तो कुंडलिनी विधान के लिए उनको अपने जो कुल पुरोहित होते हैं उनके पास करके शिव पूजा या विष्णु पूजा का मैं उनको सूचन करता हूँ। मेरे पास ऐसे पेशेंट कम है, लेकिन बिफोर मुझे पता है कि बिफोर माता पिता को प्रमेय हुआ, किसी एक में था या संभावना थी और उनको आगे जाके वो हुआ नहीं, ये होगा। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि आप देखिए कि प्रमेय व्यान और अपन की दृष्टि है, शुक्र भी व्यान और अपन की दृष्टि है इस पर सुश्रुत।
तो राजा दिलीप को प्रमेय था, राजा दिलीप को प्रमेय था और इसके लिए उसको संतान नहीं हो रही थी। हाँ, और राजा दिलीप को प्रमेय था, उसमें देवकोप ही था, वो चक्रवर्ती राजा था और इंद्र के दरबार में उसका आवागमन था, राजा इंद्र के दरबार में। तो एक बार वो जल्दी जल्दी में माता कामधेनु जो 13 धन्वंतरी के साथ संलग्न है, 13 रत्न में एक रत्न है, उनको प्रणाम करने भूल गए। तो जो गौ को प्रणाम नहीं करे, ऋषि को प्रणाम न करे, उसको भी श्राप लगता है। देव को प्रणाम न करे तो उनको श्राप लगा। तो उनको माता ने कहा कि जब तक वो मेरी संतति की सेवा नहीं करेगा तब तक उसको संतान नहीं होगी। वो अपने वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वशिष्ठ ऋषि कुल पंडित भी थे और कुल वैद्य भी थे, कुलाचार्य भी थे, कुल पुरोहित भी थे और उनके वैद्य भी थे। उन्होंने समाधिस्थ ध्यान में देखा कि भाई उनको श्राप है। वो चिकित्सा कर सकते थे लेकिन उन्होंने चिकित्सा तब नहीं की, उन्होंने सिर्फ विहार पे ध्यान दिया, क्योंकि ये देवकोप था। देवकोप जनरली आयुर्वेद औषधि से शांत नहीं होता, इसीलिए आचार्य चरक ने भी 11वें अध्याय में सबसे युक्तियोपाश्रय, सत्वावजय और लास्ट में देवोपाश्रय दिया है। युक्तियोपाश्रय से हम क्योर नहीं कर सकते देवकोप को, ये मिथ्या अवधारणा है सबकी। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि आप राजा और रानी यहाँ मेरे साथ रहो और उनकी आश्रम में सुरभि करके जो थी नंदिनी, उनकी कामधेनु माँ की पुत्री, उनका सेवा करो। तब जंगल कितने, तब पहाड़ कितने, तब सृष्टि की वैविध्यता कितनी। तो गाय माता उनके साथ, उनको जाना, पहाड़ चढ़ना, पूरा दिन घूमना, वो जो पेड़ पत्ते खाए उनसे जो उनको जौ खिलाना, और वो पेड़ पत्ते में से जो उनको शकृत में से जौ लेके उनका खीर लेना, साथ में उनका गोमूत्र पीना, तो अपने आप उनका अवतर्पण हो गया, लंघन हो गया, चलने से उनका व्यायाम हो गया। ये सब होने के बाद भी उनको प्रमेय ठीक हुआ, व्यानपान की दृष्टि ठीक हुई, लेकिन उनको देवकोप ठीक नहीं हुआ। गाय माता चलती चलती एक जंगल में चली गई और अर्जुन के वृक्ष उसमें लिखा है, मेरी शायद गलती भी होती है, अब कंफर्म रेफरेंस मुझे वो वृक्ष का याद नहीं, लेकिन अर्जुन के वृक्ष जो माँ को प्रिय था उसमें उसने अपनी पीठ रगड़ी, उसको कहीं कंडू का प्रभाव था इसलिए। तो तब वो शेर वहां प्रकट हो गया, अवलोकितेश्वर सिंह, जो शिव भगवान शिव का शेर है, उसने उसको दबोचा। तो राजा दिलीप ने तुरंत अपना धनुष और सब निकाला, उसके शस्त्र काम नहीं करे। तो अवलोकितेश्वर ने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है और मुझे माता और प्रभु का आशीर्वाद है कि जो भी क्षेत्र में है, और जो भी माता ने तो मुझे विशेष कहा कि ये अर्जुन का वृक्ष मुझे प्रिय है, जो भी इस अर्जुन को वृक्ष को दुष्टता करे वो तुम्हारा आहार तुम ले सकते हो, या ये क्षेत्र में जो भी है वो तुम आहार के रूप में ले सकते हो। ये क्षेत्र में मेरा ही प्रभाव है और किसी का कोई शस्त्र का प्रभाव नहीं चल सकता। तो आप कुछ भी करो, आप भले चक्रवर्ती हो, यहाँ आपका कुछ जोर नहीं चलेगा, 1% भी नहीं। तब राजा दिलीप ने उनको क्षमा मांगी और उनको कहा कि आप मुझे खा जाओ, सुरभि माँ को छोड़ दो, नंदिनी को छोड़ दो। तब जाके उनका देवकोप कम हुआ और फिर उनको रघुवंश की आगे उत्पत्ति हुई। ये उनमें लीन बीज में आगे चला, इसीलिए राजा दशरथ को भी 3 पत्नियां होते हुए भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, और फिर उसमें पुत्रेष्टि यज्ञ राजा ऋषि वशिष्ठ ने फिर से सजेस्ट किया था। यानी ऋषि वशिष्ठ ने हर बार जो 38 पीढ़ी से जो रघुवंश था उनमें कहीं ना कहीं ये प्रमेय की और शुक्र की दृष्टि का प्रभाव था। उनको उन्होंने देवकोप से बचाने के लिए हर बार यज्ञ यागादि, गुरु, ऋषि, गाय माता, उनकी सेवा से उनको वो दूर किया था। तो होलिस्टिक अप्रोच के लिए मेरे ख्याल से पहले तो उनका एकदम अभ्यास करके उनके साथ उनका कौन सा प्रकोप है, कौन सा दुष्टि है, कैसे ये हुआ, उनका प्रकोप क्या है, कोप है या श्राप है, कुंडली में कोई मतभेद है, वो योग क्या बनता है, वो समझ के हम चिकित्सा करें ना तो वो ज्यादा उपयोगी रहता है और वही फायदा कारक होगा। अन्यथा इतने साल से ये सब चर्चा चल रही है, परिणाम उतना उत्साही नहीं है और अभी भी लोग इंसुलिन लेके ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा कि मेरे पास 2-1 केस ही है, तो मैं ज्यादा उसमें टिप्पणी करने के योग्य भी नहीं हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ कि भाई 2 केस हो गए तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी संतान पूर्व धारणा करे और उनको माता को पीसीओडी या गर्भाशय की दृष्टि हो, मेदस्विता हो
और पिता को अपने कुल में अपने चाचा या अपने जो उनका जो 7 पीढ़ी का कुल हो कहीं न कहीं प्रमेय हो, तो उनको निश्चित रूप से बीज भाग और बीज भागावल की शुद्धि के लिए गर्भ संस्कार में गर्भाधान की जो पूर्व भूमिका है निश्चित रूप से करनी चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। आप सबने मुझे सुना, इसलिए आप सबका आभार। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत लेट हो गए सर उमंग जी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। ये तो याददाश्त रखने के लिए गजब गजब उमंग जी, गजब। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप सुनते रहिए। डॉक्टर साहब पांडे जी ने डॉक्टर साहब उमंग जी ने सिंह और दिलीप का संवाद बताया जी। वहां जब दिलीप जी जब बाण निकाल रहे थे तो सिंह ये कह रहा था अलम मही पाल तब श्रमेण नपाद पूल मूलन सत्य रंग चिलोचे मूर्छित मारुतस्य, कि तू मेरे को मार नहीं सकता, ये सब उसका संवाद आता है। डॉक्टर साहब आज की अपनी वेबिनार बहुत अच्छी रही, इसमें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कह सकता हूँ? अभी एक 15 मिनट बाद, केवल 15 मिनट। अभी एक स्पीकर बाकी है साहब, डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। Good evening everyone. Myself Dr. Brahmdas Sharma, Assistant Professor, Department of Komar Bhritya, NIA Jaipur. As sir told, today's topic of presentation is Ayush for Children, Holistic Development. First, we have to understand that the concept of prevention is better than cure is well recognized in Ayurveda, and its foremost objective is maintain and promotion of health of the healthy. So it is very important in the case of children. The aim of this branch is better development of children who are tomorrow future. As in Acharya Kashyap told, Anen hi samvarditam itre chikissanti, that the society stand for molding the pediatric community into healthy adults. Now we are discussing the main heading, the holistic approach of Ayush for children. So the concept of Ahar Nidra Brahmacharya is well recognized in Ayurveda, but we can modulate according to children, Ahar, Nidra and Vyayam. And next thing is mental health. So we will discuss one by one. The Greek physician Hippocrates, known as father of medicine, said, let food be your medicine. So food is very important. So mainly focus on the prevention through food. As Acharya Kashyap told, that aharo mahaveshajyam uchyate, अर्थात यदि आपने आहार अच्छा लिया है तो आपको व्याधियां ही नहीं होंगी। तो मेन हमें क्या चीज फोकस करना चाहिए अपने डेली रूटीन में? द राइट टाइम, द राइट क्वालिटी, द राइट क्वांटिटी, राइट मेथड एंड राइट टाइम और काल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बच्चे को खाना तभी देना चाहिए जब उसको भूख लगे। अभी क्या होता है, माँ बाप का एक शेड्यूल बन गया है कि इतने बजे उसको खिलाना है तो खिलाना है, भले ही बच्चे को भूख लगी है या नहीं, उसकी एक्टिविटी हुई है या नहीं। उसकी एक्टिविटी कम होगी तो उसको भूख भी कम लगेगी। तो हमें अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू हंगर उसको काले भोजन देना है ना। इट शुड बी ऑन द टाइम व्हेन चाइल्ड फील हंगर। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी शुड बी एनफ, इट शुड नॉट बी मोर. It can produce childhood obesity, and if we are giving less, it can produce undernutrition. Component should be mix of all rasas. Important thing is mental health. जब बच्चा खाना खा रहा है तो उसको टीवी या मोबाइल या आपस में बातें ना करें। उससे क्या है कि माइंडफुल ईटिंग नहीं होती, और माइंडफुल ईटिंग नहीं होगी तो इट में प्रोड्यूस आर्म। क्या हुआ सर, उनका प्रेजेंटेशन रुक गया क्या? एंड प्लेस, बच्चों का खाना जहाँ बनाएं वहां पर प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उनके जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो भी साफ होने चाहिए। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, इनका क्या प्रेजेंटेशन चल रहा था, रुक गया क्या? डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जी का। वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट, इट शुड बी चालू है सर, चालू है।
seasonal वो पूरी स्लाइड and पढ़ते हैं उतनी variety देर of ही रुका है। articles. हाँ As अच्छा स्लाइड आ our गई, Prime Minister चालू है। mainly ठीक focusing ठीक on vocal for local, है ना। लोकल फूड जो है किसी भी जीन के लिए, किसी भी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल होता है, वो उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। When we are talking our Ayurved concept, we are not talking mainly on the nutrition. हम उसको दीपन पाचन की भी बात करते हैं। So we should include some spices like जीरा, दालचीनी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, हल्दी, काली मिर्च। यदि पॉसिबल हो तो बच्चे के खाने में आधा से 1 चम्मच हमें घी मिक्स करना चाहिए। और यदि हम उसको दूध का सेवन करवा रहे हैं तो इट शुड बी मिक्स विद हल्दी, अदरक और सौंठ। As I told before that it should be mix up of all food articles like cereals like चालीस stick, लाजा, गोधूम, यव, पल्सेस, मुदक, मसूर, कुलथ एंड स्पाइसेस। हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है? हमें अभी जैसा कि मार्केट में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि टीवी पे ऐड आते हैं बच्चों को लुभाने के लिए, बट उन आर्टिकल्स को हमें अवॉइड करना है। पैक्ड फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, इट शुड बी अवॉइडेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, so many examples I will not discuss here. Light to digested food preparation like tarpan laja sattu mixed with honey, sugar or fruit juices, or other is use of moong dal, soups of vegetables, khichdi, rice, fulka. The light food should be available for especially for the malnourished children. If बच्चे को यदि भूख कम लग रही है तो हम उसको खाने से पहले अदरक में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के खाने से 15-20 मिनट पहले दें तो उसको भूख अच्छी लगेगी। ये एक घरेलू नुस्खा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हितकर आहार in adequate quantity should be there according to the status of Agni. If we are not avoiding the Agni, then it may produce Am, and Am produce many diseases. Most important thing is regional specific millets. They are more nutritious and more acceptable for the children, like गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, कोनी, सावा, कोदो. It is very important. And oil we are cooking, तिल तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल we can use. For improving the child digestion and assimilation of nutrition, so here assimilation is very much important. Because so much national program are providing many of the food articles, but they are failed due to they are not talking about the assimilation of nutrients. In Ayurveda there is very good concept for the assimilation. We can use the powder of pipli, marich, dhania in small quantity, or in Ayurvedic preparation we can use trikatu, dadimastak churn, hingvastak churn, panchkol. It may enhance the power of assimilation. It is very important. आजकल क्या हो रहा है कि जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, जो कि इस फूड पिरामिड के सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिसके अंदर फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर, फैट, साल्टेड डाइट, इनको हमें अवॉइड करना है। टीवी पर इन्हीं चीज़ों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और बच्चे इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसमें वेजिटेबल, सलाद एंड फ्रूट्स हैं, उसको अवॉइड किया जाता है। तो ये आई थिंक हर ओपीडी के अंदर, जहां हम फिजिशियंस हैं, तो हर ओपीडी के अंदर ये चार्ट होना चाहिए। बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इनके बारे में अवेयर कराना चाहिए। These are so many examples what we can eat: cereals, pulses and vegetables.
milk and milk products, mass work, fruits, seasonal fruits. Specific advices for the children. As I told before, avoid watching TV and mobile while eating. If possible, mix half to 1 TSF ghee in daily diet. Avoid packed or junk food. Include spices, as I told before, jeera, dalchini, soont, lasun, elaichi, azwain and haldi. Age specific diet. First we are talking for the 0 to 6 month children. They were mainly depend on breast milk. So every nutritious things should be given to the mother, not for the baby. In Ayurveda, what can we do? We can practice abhyang with different type of oil like sesame oil, coconut oil, olive oil, and slightly exposure to the sun. So it is very important for the 0 to 6 month children. Next is for complementary feeding at the age of 6 months, or we can say the weaning articles. In Ayurveda, we can give chawal ka mand, modak, yush, dalia, smashed kela, aloo, ragi, kela smoothie, and we can add some amount of ghee. Millets preparations like halwa, rajgiri ka halwa, rajgiri ke laddu, payasam, dhan ki kheer, some drumstick dosa. We can use all these. 6 months to 2 years, the age of Falprashan and Annaprashan is there. So as I said before, the weaning food we can use. 2 to 10 years, minimum 4 meals, 2 main meals, 2 snacks should be given. And after 11 years, minimum 3 meals, breakfast, lunch and dinner should be there. Various food options are available in ICDS, Modern Medical Sciences, that Hyderabadi mix, Devanagari mix, where we are using the flour of wheat, Bengal gram, groundnut, jaggery. This formulation is developed by CFTRI Mysore, wheat flour, groundnut flour, roasted Bengal gram. Malted food developed in Mysore, in Kerala. So many preparations, but main thing is that Ayurveda consider the assimilation of food. So it is very important. Nutrition, with the nutrition, assimilation should be kept in mind. Dietary recommendation according to the disease, well mentioned in Ayurveda. As in home practice, we are giving some soups, warm water, honey with ginger in cough. And for loss of taste and increasing appetite, we are using buttermilk with trikatu or kali mirch powder, munakka, anar, khajur. In Ayurveda, so many nutraceuticals are available for weight increasing in children. Kushmandavale, the powder of Vidari, Bala, roasted makhan and Prinan Modak. Next come Dincharya. So starting early rise in the morning, first we focus on the dental hygiene. So dental hygiene, the gandush, kaval, according to age we can use. Abhyang is very important since the birth. Next is daily use of anu tel or any cow ghee, nasal application, or we can say pratimarshnas. This is very important. Many children nowadays has weak immunity or allergic problem. They can use this in daily routine. It is very helpful. Physical activity
Daily practice of yogasan and pranayam at least for 30 minutes is advised by Ministry of Ayush. Sleep is very important. Less than 1 year, 12 to 16 hours sleep should be there. 1 to 2 year, 11 to 14 hours. 3 to 5 year, 10 to 13. 6 to 12 year, 9 to 12. And for teenager, minimum 8 to 10 hours sleep should be there. Media usage should be restricted. I am not discussing here. For the mental development और nowadays अभी स्कूल्स में सब जगह एक कॉम्पिटिटिव माहौल है, हमें चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वी कैन यूज़ ऑल दिस मेडिसिन इन द सुपरविजन ऑफ एनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर. मंडूकपर्णी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुड़ुची, जटामासी, अश्वगंधा, वचा, पिप्पली. Most important thing is Swarnaprashan. Swarnaprashan is very important. When we are giving it for 1 month, it makes child medhavi and his immunity power is also boost. And when we are giving it for 6 months, the intellectual power will become very sharp. Yogasan as practiced or advised by Ministry of Ayush should be there, as I presented in this slide. Counseling should be there. We should not pressurize our children for his good future. हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. बहुत सारी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर मेंटल वेलबींग. शिरोधारा, शिरोअभ्यंग, पादअभ्यंग, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं फॉर प्रमोशन ऑफ इम्यूनिटी. वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, टाइम की जैसा कि कमी है. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Virumdat Sharma ji. Thank you, very precise presentation. Thank you very much. Though you are not with us, but you have presented well. Agnihotri sir, Mahesh Sharma ji. Thank you so much. Really, today's webinar would have been incomplete if we have not heard Dr. Virumdat Sharma ji. It's our pleasure that NIA has given full support, and he is intelligent enough to send the video in advance so that I requested him, sir. Yeah, sure. So it's a very nice means a gesture. We are supposed to liberate and share the knowledge. If it is not physically possible, recorded machinery, technology is so with us that we can avail this facility. Well, all the persons have very justifyingly supported Dr. Hema Malini. I don't know how much she is intelligent, how much knowledge she is bestowing with her, and so was the case with our Pandya sir. He touched a wonderful site where he talked about the historical background of Raja Dilip, as mentioned by Mahakavi Kalidas ji in Raghuvanshi, that how he was, Dr. Dilip was blessed with the progeny, with the total services surrendered to Nandini. This is very good reference, and it all falls under the heading of Sadachar. वो ब्राह्मण पूजा यज्ञ सब कुछ है, और उसमें कठिन परिस्थिति गुजरेंगे तो बहुत ही अच्छा था. वो परीक्षा काल था, उस जमाने में सतयुग में परीक्षाएं और सब चलती थी, त्रेता युग में चलती थी. तो आज की सेमिनार बहुत अच्छी रही और बड़े कायदे से सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ में, पहले तो हम लोग बाल दिवस मनाते थे उत्साह के साथ में, आज हम लोगों ने बच्चों की डायबिटीज को दूर करने के लिए सभी एफर्ट्स किए. उसमें पहले हमारे वेबिनार की वो महेश शर्मा जी कुछ बोलना चाहते थे सर. जी हाँ, अच्छा, मैंने अपनी बात पूरी करी. डॉक्टर महेश शर्मा जी, आप जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है. प्लीज डॉक्टर, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. अभी आजकल जो डायबिटीज चल रही है हिंदुस्तान में,
उसको मैं डायबिटीज नहीं मानता। अपने मधुमेह अलग है, डायबिटीज अलग है। अभी जो डायबिटीज चल रही है ये रक्तगत आम है। रक्तगत आम को मान के मैं चिकित्सा करता हूँ, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो जितने भी अपने निदान क्या बताए बात गए है, हैं। क्या बात है शर्मा जी, आपने दिल की बात ले ली। सेम बात मैं कहना चाहता था, सेम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यही इसमें है डॉक्टर असलियत। असलियत, हाँ, आयुर्वेद यही है। इसमें हाँ। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदकानु प्रसापयांसी नवान्न पानम गुणवे कृतम च प्रमेय हेतु कप्रति सर्वम। मधुमेह में कोई भी डायबिटीज में किसी मधुमेह का कोई लक्षण मिलता ही नहीं है, तो अपन डायबिटीज को मधुमेह नहीं कह सकते। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अपने को जैसे आम की उत्पत्ति हुई, पहले रस में जाएगा फिर रक्त में जाएगा। तो अपने रक्त में जब आम आएगा तो आम का गुण मधुर होता है, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, डायबिटीज पॉजिटिव आ जाएगा, मानकर उसको अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जबकि वो मधुमेह नहीं होता है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और दीपन पाचन औषधियों से ये कंट्रोल हो सकता है। मेरा अभी तक अनुभव यही कह रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसी मत का 100% हूँ शर्मा जी। आधे लोगों को डायबिटीज गलत डायग्नोस हो रही है, रात को ठूस के खाते हैं, 12 बजे सोते हैं और सुबह फास्टिंग समझ के वो सैंपल देते हैं, वो पीपी का सैंपल होता है। बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं, यही सत्य है, ये ऐसा ही हो रहा है। अपने इस बात को आगे तक उठाना चाहिए अपने को। आगे इसी पे डिस्कस करेंगे एक बार। मधुमेह क्या, डायबिटीज, वेदर डायबिटीज इज मधुमेह, इसी पे वेबिनार रखें। हाँ, इसी पे वेबिनार रख देंगे। आप भी एक स्पीकर रहना उसमें। बहुत अच्छा बोले आप। मेरे को भी बोलना आया नहीं, मैं सीख रहा हूँ अभी। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको बोलना आता नहीं आता? वो तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना। आप भी कमाल कर रहे हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? श्रोता बताएगा कि हमारा वक्ता कितना श्रेष्ठ है। वो बोलने में फ्लो बोलने में जो फ्लो होना चाहिए। प्रार्थना करना चाहता था, किसी भी विद्वान वक्ता को उस समय बीच में रोकना बड़ा गिल्टी फील होता है मुझे। कैसे इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि हम 20 मिनट हर वक्ता को देते हैं, लेकिन वो 40, 45, 50 मिनट तक पहुंच जाते हैं। ये क्लास नहीं है, यहाँ हमको प्रैक्टिकल चीजें शेयर करनी चाहिए जो सबके काम है। जो अपने बीएमएस में पढ़ने उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई नई चीज आए उसको बताना चाहिए। जी जी जी, वही मैं चाहता था। तो मैं अग्निहोत्री सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता था, अगली वेबिनार से एक बार आप बोलते अच्छे लगोगे, मैं बोलता गलत लगूंगा, लोगों को बुरा लगेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी कि वक्ता जो है पहले अपना मुख्य बात अपने अनुभव की दे दे, फिर अगर कोई समय बचता है तो दे, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष का पृष्ठपोषण होता रहता है। इसमें कारण है ना, इसमें कारण आप जितने भी आते हैं सब कॉलेज से आते हैं। कॉलेज में आने वाले स्पीकर होते हैं, वो अध्यापक होते हैं, उनको बोलना शुरू कर देते हैं। ये तो हम लोग को ही लपेट लिया। तो पवन शर्मा जी संभालिए। ये बढ़िया रहा, ये बहुत अच्छा। नहीं भाई, कॉलेज में चिकित्सालय भी होता है, वहाँ चिकित्सा कार्य भी करते ही हैं। मुख्य कार्य उनका क्लास लेना होता है ना, तो क्लास में जैसे बोलते हैं वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। और हम लोग तो प्रैक्टिस नहीं, हमें बोलना नहीं आता, हमें प्रैक्टिस करना आता है, हमें बोलना नहीं आता। नहीं, बहुत सुंदर बोलते हैं। मैं अब डॉक्टर सीपी शर्मा जी से आग्रह करता हूँ। डॉक्टर सीपी शर्मा जी, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। डायबिटीज पे वो आप कहीं गलत जगह फंसे हुए सर। हम आयुर्वेद एक आदर्श चिकित्सा व्यवस्थापन है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो विशुद्ध आदर्श है। प्रयोग समयेत व्याधि यो अन्य व्याधि मुदीर्यते नासो विशुद्ध शुद्धस्तु समयेत यो न कोपेत। व्याधि को नाश करे, कोई दूसरा उपद्रव पैदा नहीं करे, वो एक आदर्श चिकित्सा है। इस आदर्श चिकित्सा व्यवस्था में मेरा जो चिकित्सकीय अनुभव है सर, एकल औषधि पर है। मैं एकल औषधि पर जो मैंने छोटा मोटा अपना आकलन किया है, उसको मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। इसमें सर हमें कौन सी, जस्ट लाइक मॉडर्न सिस्टम। छोर से बाहर आ जाइए ना,
शोर हो रहा है आपके वहाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रही। जी 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 जी। आपके वहाँ शोर है बैकग्राउंड में बहुत। अरे यहाँ अखंड रामायण चल रही है। चलिए कोई बात। अब आप कम हुई अब? हाँ बहुत। हाँ तो सर ये हमारे यहाँ जैसे मॉडर्न सिस्टम में है ना कि बिफोर ब्रेकफास्ट ये लेना है, बिफोर लंच ये लेना है, बिफोर मील ये लेना है। तो मैंने ऐसी एक अपनी व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में जैसे हमें खाने से पूर्व जो औषधियां देना है, जस्ट लाइक मेथी और गुड़मार, ये शर्करा का अवशोषण डिले करती है। तो इसका अपन एक चूर्ण बना सकते हैं जिसमें मेथी हो, गुड़मार हो, जामुन की गुठली हो, आम की गुठली भी इसमें चलती है। ये दो, आम की गुठली और ये बीटा सेल्स को उत्तेजित भी करती है। साथ ही बाद में जो खाने के बाद लेना है, जैसे विजय सार में पानी भर लो, तेज पत्ता, विजय सार और गुड़मार, इसका चूर्ण बना लें। जो हमारे गुड़मार में जिम्नेमिड एसिड पाया जाता है, जो इस ब्लड शर्करा को मेंटेन करने का या एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। साथ ही जो रक्त शर्करा, जहां पर ये हमारा व्यवस्थापन हो रहा है, धात्वाग्नि भूताग्नि पाक हो रहा है, उस धात्वाग्नि भूताग्नि पाक के लिए हमें कुटकी, कालमेघ, पुनर्नवा, भिरंगराज, इसका चूर्ण बना के भोजन के साथ हो या बाद में दे सकते हैं, जो हमारे यकृत और हमारी टिश्यू मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करे। साथ ही जो अभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आयुर्वेद बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, परंतु जो चतुर्बीज है, वो चतुर्बीज हमारा एंडोक्राइनल के लिए अच्छा काम करता है। उस चतुर्बीज में मैंने काला जीरा और चंद्रशूल, गिलोय और आंवला का चूर्ण बना के, ये भी रक्त शर्करा ह्रासक है, भोजन के बाद लिया जा सकता है। साथ ही कुछ जो एम्प्टी स्टमक लेना है प्रातः काल, जैसे बिल्व पत्र, नीम पत्र, तुलसी स्वरस, तुलसी पत्र का स्वरस बना करके ये हम पूर्व में ले सकते हैं और बाद में ले सकते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज की मसल्स हैं, उस मसल्स में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, उसको मैनेज करता है। साथ ही करेला के बारे में आपने उसको तो कहा, ये इंसुलिन का प्लांट ही कह दिया, कुछ आचार्यों ने चिन्हित किया द्रव्य गुण वालों ने, तो उसमें जो पेलीपेप्टाइड है वो हमारा शर्करा को मेंटेन करता है। तो इस तरह से हम अपना आयुर्वेदीय व्यवस्था। जी सर। सीपी शर्मा जी, जूस जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है डायबिटीज में। जी सर। किसी भी दवाई का जूस नहीं दे सकते। स्वरस कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। कोई स्वरस, बिल्व पत्र और नीम पत्र स्वरस और तुलसी पत्र स्वरस का सर अच्छा उदाहरण है। आप इसको स्वरस मत दो, इसका सूप बना के दे दो, वो अच्छा है। नहीं सूप नहीं, उसको घोटिए, पीसिए, पिला दीजिए। नहीं, अपने चरक में लिखा है ग्राम्योदकानुपरसा, ये सब वर्जित है, रस कोई भी वर्जित है। ग्राम आयुधुक आनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुण प्रथम प्रमेय हेतु कप कृष्णम। परंतु ये इसका तात्पर्य ये नहीं है सर। स्वरस मीन्स ताजी पत्ती का लेना है, अच्छे पूरे पत्ते जो मैच्योर हैं, उसकी जो पूरी की पूरी वो है केमिस्ट्री है, उसके जो एल्कलॉइड है। जी सर। एक मिनट सुनो जी। एक मिनट, जो स्वरस होता है ना, स्वरस कल के क्वाद फांट और हिम, तो स्वरस सबसे गरिष्ठ होता है, पाचन में वो गरिष्ठ होता है, अग्नि को मंद कर देगा वो। नहीं, अग्नि तो मंद करेगा, ठीक है, तो अपन तुलसी उसमें वो मिला देंगे, काली मिर्ची मिला देंगे, त्रिकटू मिला देंगे। इसका जूस नहीं देगा, सूप दो ना। चलिए सूप का करते हैं, अभी हम जूस दे रहे हैं सर, हमने अभी जूस दिया है। जी सर। और रात्रि में हम विजय सार लकड़ी का जो गिलास रहता है उसमें पानी भर के सुबह पिलाने का भी
विधान है। मेथी का भी, मेथी के लड्डू बना लो, मेथी का गुड़बार, तेजपात, इन जामुन की गुठली, इन सब के साथ चूर्ण बना लेते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ आंवला और हल्दी का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो आंवला हमारा एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, साथ ही वो हमारी पूरी की पूरी डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस है, फैट वसा नियंत्रण करता है, हृदय है, हमारा प्रमेय अग्न है, साथ ही हमारी किडनी की फंक्शनिंग को प्रॉपर बनाता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी नॉर्मल स्टेटस रखते हुए किडनी को भी नॉर्मल फंक्शनिंग में लाता है। तो जो आंवला हमारा है, आंवले के बारे में, आंवले की रसायन यूज किया जा सकता है। ये तो हम मेरा एकल औषधियों के बारे में थोड़ा सा मैंने जो चिन्हित किया है। साथ ही जो औषधीय प्रयोग या जो कंपाउंड मैंने यूज किए हैं उसमें फलत्रकादि सबसे अच्छा प्रमेय अग्न है। त्रयोदशज प्रमेय में फलत्रकादि काढ़ा प्रमेय रोग अधिकार का, पांडु रोग अधिकार का नहीं, प्रमेय रोग अधिकार का। साथ ही चंद्रप्रभावटी, शिवा गुटिका, मामेज घनवटी, और यदि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो आप बसंत कुसुमाकर का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही पथ्य में उन्होंने मुग्ध आमलकी, मूंग और आमलकी को 3 व्याधियों के लिए, प्रमेय के लिए, सूत्र के लिए, कुष्ठ के लिए और कफज मूत्र विकारों के लिए आचार्य चरक ने स्पष्ट उल्लेख किया है। साथ ही अन्न में तो यव प्रधानस्त यव भवेत प्रमेही, ये सब चीजों हम प्रयोग करके और शास्त्रोक्त आहार और शाक, इन सब का प्रयोग करते हुए निश्चित स्वास्थ्य लाभ या प्रमेय नाशक व्यवस्थापन में आयुर्वेद एक आदर्श चिकित्सकीय व्यवस्था प्रस्तुत कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा है। डॉक्टर एक सुझाव और है जी बोलिए। अपने मीटिंग के बाद में कैलकुलेशन निकलना चाहिए भी। अपन 2 घंटा सुनते, डिस्कशन करते, उसका कैलकुलेशन आना चाहिए कि कैलकुलेशन क्या हुआ इसका। एक बात पूछूं सर जी। अकेला आदमी स्ट्रीम करेगा, डिजाइन करेगा, लाइव करेगा, वेबिनार होस्ट करेगा, 8 घंटा वेबिनार के लिए देगा, अब और क्या चाहते हैं प्लीज बताइए। इसमें आप मदद कीजिए। वैसे अग्निहोत्री जी पूरा लिखते हैं, पूरा कंक्लूजन लिखते हैं, लेकिन वो अकेला चना भाड़ नहीं पड़ो। कंपेंडियम बन सकता है, वीडियो एडिट हो सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो सकते हैं, रिलोड, कोई साथ तो दे। मैं 3 बजे उठता हूँ, अभी तक सोया नहीं। आज सोमवार है, उपवास का दिन है। अब आप बताओ मेरे को, मेरे पे जितनी मेरी क्षमताएं हैं इस 60 साल की उम्र में, उतनों का पूरा मैं एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूँ। ये मेरे को कभी कभी लगता है और स्पीकर भी तो ढूंढते हैं। पहली वीडियो सबसे बड़ा वो तो मैं तो वो भूल ही गया था, वो तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा काम जो कि आप बुला रहे हैं वेबिनार, बोलेंगे कौन? सबसे पहले तो सिलेक्शन जो स्पीकर्स को होता है, चलनी लेके छानते, कहीं वही मिल जाए, कहीं मिल जाए, विभिन्न फील्ड की। सच्ची में अभी भी मेरे को एपिलेप्सी पे अच्छे नहीं मिले। तो आप ऐतिहासिक काम कर रहे हैं पवन जी, आप ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। अरे जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दुआ करो। नहीं, मैं तो बस इतनी है, अग्निहोत्री जी हैं, महेश शर्मा जी हैं, उमंग जी हैं, हेमा जी हैं, सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, यदि कहीं बीच रास्ते में अलविदा कह जाऊं तो इस यात्रा को चालू रखिए। नहीं ऐसा बंद मत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें भी आधे घंटे के अंदर निकलना है दिल्ली के लिए, फिर जबलपुर की फ्लाइट है सुबह। आप उपसंहार कीजिए सर, अग्निहोत्री सर, उपसंहार। तो आज हम लोगों ने 492 और 493 सेमिनार्स के रूप में डायबिटीज के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, और विश्व स्तर पर जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है उस पर आयुर्वेद का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, विशेष रूप से बच्चों में, उस पर आज हमने बहुत अपने विशेष आमंत्रित अतिथि वक्ताओं के द्वारा ज्ञानार्जन किया। और दूसरी तरफ यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पर भी हम लोगों ने चिल्ड्रन की एज को, चिल्ड्रन की हेल्थ को, राइट फ्रॉम द वूम
से लेके 18 साल तक कैसे विभिन्न प्रकार की व्याधियों से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि डे डायबिटीज का था, इसलिए ये भी रहा कि बीज बीज भाग बीज भावा अवयव से लेके जितना ज्ञान आज आया उसमें यही रखा गया कि अगर पेरेंट्स का खाना अच्छा है, उनके आचार विचार अच्छे हैं, तो प्रोजनी भी अच्छी बनेगी और शायद कुलज व्याधि भी शायद अगली पीढ़ी में ट्रांसफर न हो पाए। हम संस्कार इतने अच्छे रखें, युक्ति विपाश और सत्ता विजय और देव विपाश, सभी चिंताओं के सभी विधाओं को एक एक करके लिया गया। घूम फिर के सभी एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक जो विचारधारा है उनको रखा गया, उनके प्रतिनिधियों को दिया गया। लेकिन जो बाद में आपने महेश जी ने, प्रोफेसर शर्मा जी ने बात रखी कि हम इसको डायबिटीज को प्रमेय माने ही ना, डायबिटीज के लक्षण अलग, प्रमेय के लक्षण अलग। हमारे यहाँ डॉक्टर अरुण कौशिक ने भी ऐसी बात कही थी कि मधुमेह रक्तगत शर्करा है या मूत्रगत शर्करा है, शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए। हाँ सही बात है। सबसे अगर हम शुरुआत करें तो मुझे ये दूसरे भी मिल गए। अरे वाह वाह, सेम माइंड के सेट के लोग मिल रहे हैं। आप मुझे ये बता दो, मैं इस टॉपिक पे वेबिनार कब नहीं, मैंने जब बात छेड़ी, मैं तो कंक्लूड कर रहा हूँ, जो चीज छूट गई वो बता रहा हूँ, इन लोगों के मुख में डाल रहा हूँ कि आपको ये बताना है, क्योंकि डॉक्टर अरुण कौशिक को भी जोड़ लेंगे। उन्होंने इसी बात को हमारे यहाँ 1997 में एक लेख लिखा था हमारी रिचुअल की स्मारिका में। तो कुल मिला के जैसे कि जो व्यथा है महेश शर्मा जी की, इसका रेजोल्यूशन तो ये हो संभव होता है जब लास्ट में 5 मिनट में 7 मिनट में पैनल डिस्कशन, जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स होते हैं उन्हीं से हमें कहेंगे कि आप फीडबैक के तौर पर एक एक लाइन में अपना रिजल्टेंट दे दें, जिसको कि हम कंपाइल करके आज की वेबिनार का ये इन्फ्लुएंस या टेक होम मैसेज तौर पर ले सकते हैं। आपका आइडिया बढ़िया है और ये काम उन्हीं लोगों से करवाइए जिन्होंने कहा है। सर, लेकिन वो मैसेज लेके कौन जाएगा और कहाँ जाएगा? नहीं, पहले 50 के 5 बचते हैं आखिरी में। 5 हाइपोथेटिकल बात है, ये केवल हाइपोथेटिकल, बोलने वाले भी नहीं बचते हैं, वही तो मुश्किल जो मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं, ये 50 के 5 में हम क्या कंक्लूजन बताएंगे? क्या करेंगे, इसका तरीका ये होना चाहिए सर। उसको बहुमत माना नहीं जाएगा सर, इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर में यदि कहीं स्टूडेंट्स हैं कोई कनेक्शन में, तो वो हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इसका कंपेंडियम बनाने में। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये संभव नहीं है कि वो 50 का कंक्लूजन और 5 वो स्पीकर ही नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। इसीलिए हम अपनी स्टूडेंटशिप को जागृत रखते हुए कुछ कुछ लिखते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट जुड़ जाए तो हमारी संख्या नहीं बढ़ जाएगी। जो लोग शिक्षा जगत से अभी जुड़े हुए हैं, शिक्षा संस्थाओं से, वो उनमें थोड़ा सा प्रेरणा दे सकते हैं बच्चों को कि वो आ जाया करें। तो उनको असाइनमेंट देते हैं कि आज मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था आपसे, यदि आप चाहो तो। आप बहुत बड़ा साथ दे रहे हो, आशीर्वाद। मैं आपका दोहन नहीं कर सकता आशीर्वाद का, फिर भी एक प्रार्थना करने पे बाध्य हूँ, क्योंकि आप बड़े प्यार से सब कुछ लिखते हैं। केवल मुझे एक एक वक्ता की 2-2 लाइन लिख के, समझ लीजिए हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लिखे, वो एक बार भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ये बोला तो अपन वो यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअस उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये अच्छा, हाँ ये और नंबर दूसरा, वही चीज हम प्रेस वालों को भेजेंगे, प्रेस रिलीज के। हाँ, कई वेबिनार्स का आता है, कई वेबिनार्स का आजकल जैसे ना, इसीलिए ये यदि एक फॉर्मेट आप बना लेंगे तो उसमें केवल नाम, डेट, टॉपिक और उनका क्या बोला 2-2 लाइन और स्पीकर के नाम, ये बस चेंज करना पड़ेंगे। हम फटाक से रोज एक प्रेस रिलीज देंगे। तोमर साहब का, अनिल शुक्ला जी का, इनका सबका देखते हैं अक्सर नेक्स्ट पेज पर प्रयागराज से कहीं से बराबर आ जाता है कि क्या संगोष्ठी हुई है। महेश शर्मा जी से एक आग्रह है, ये करेंगे ना महेश शर्मा जी, आप इन वेबिनार्स की लिंक को जितने मिनिस्टर हैं, यदि प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आपके ही थ्रू जाए, आप रोज इन लिंक्स को उनको भेजते रहो बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये टैग करना नहीं आता मेरे को, मेरी गड़बड़ ये टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं, सच्ची बोल। मैं भी आपकी एज ग्रुप का हूँ, मुझे भी कम आता है सोशल मीडिया। नहीं, केवल पूछ के, केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, आयुष मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, ये अपनी खबरें रोज वहां जाती रहे। वैसे कोटेचा पे भी रोज जाती है, नेसरी पे भी रोज जाती है, इन सबको मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ये बात अपनी अभी तक पीएमओ तक नहीं पहुंची है। अग्निहोत्री,
चलिए सर, तो आज की इस वेबिनार के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथि वक्ताओं ने बहुत बड़े सहयोग के साथ अपने ज्ञान को बांटा हम लोगों के बीच में। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोतागण, हमारे प्लेटफॉर्म के डिग्निटरीज जिन्होंने अभी तक साथ दिया है, आगे भी देंगे ऐसी आशा है, और यूट्यूब विजिटर्स, उन सभी लोगों का आज बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी समय कीमती। देखिए देवाशीष जी जुड़े हुए हैं। देवाशीष जी, आप भी थोड़ा समय निकालेंगे तो कुछ नोट्स बना लिया करिए, जिससे कि आपने जो दिया है, आप नेटसेल में क्या कहना चाहते हैं बच्चों के डायबिटीज मामले में, से 2-2 लाइन का भी आप देंगे, और सभी से आगे भी, तो हमारा एक जो संग्रह हो जाएगा वो उसको हम कम्युनिकेट कर सकेंगे, और आप भी अपने स्तर से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपके जुड़ी हुई अथॉरिटीज हैं, चाहे वो उनसे हम बहुत सीखना चाहते हैं सर, जीन्स में, जेनेटिक्स में उनसे हम सीखना चाहते हैं। जी हाँ, हमने उनको दिया है, प्रोफेसर मदन संगवेलू जी से मैं उनको जुड़वाया है, जीनोम में इनका बड़ा अच्छा वर्क है। इसमें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ साहब आपको मैं। हमारी एक डॉगी था, उसकी पूंछ आधी कट गई किसी एक्सीडेंट में, तो उससे जो बच्चे पैदा हुए उनकी भी आधी पूंछ कटी हुई थी। अरे हाँ, ये मैंने देखा है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं हो सकती। लिजर्ड वगैरह तो टेल बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती है। तो उस कुत्ते के जो बच्चे हुए, 4-5 बच्चे हुए, उनमें से जो मेल थे उनकी आधी पूंछ कटी हुई थी, फीमेल की नहीं थी। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी रिसर्च का मॉडल है, ये तो बहुत बड़े रिसर्च मॉडल है। फिर वो कुत्ते के संग जो कहावत है वो तो उनका मुहावरा खत्म हो गया। लेकिन पूंछ कटे हुए कुत्ते के बच्चे की पूंछ कटी हुई पैदा हुई। वो नया मुहावरा बन जाएगा ये तो। थैंक यू, जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर उमंग पटिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप म्यूट है देवाशीष जी, आप म्यूट हैं। सर जी नमस्कार। हमारे डीएनए सर कह रहे थे एक प्लांट्स में कई प्रकार का पौधा बन सकता है। एक प्लांट में टमाटर, फूलगोभी, सभी प्रकार पौधा को एक प्लांट्स में भी हम निकाल सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। सर क्या बात, जो पहले बोनसाई बनाते थे वैसा कुछ। आलू, बैगन एक पेड़ में पूरा निकल सकता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में होता है। वो प्रेमनगर आश्रम में लगा हुआ है ना, पंचपल्लव पेड़ लगा हुआ है, बट पीपर, पाकरी, रसाला, 5 वृक्ष जो पंच बताए हैं, वो पंचपल्लव वृक्ष हमारे प्रेमनगर आश्रम में लगा हुआ है। सर जानते सर, मेरा रिसेंटली मैंने 3 महीने पहले, 5-6 महीने पहले जो मेरा रिसर्च डीएनए टेस्ट नहीं हुआ था, मेरा मसल्स पेन हुआ था, काफ मसल्स एंड थाई मसल्स पेन हुआ सर। आई हैव टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन लिया पर रिजल्ट नहीं हुआ। जब डीएनए में कहा कि आपका विटामिन B12 और ओमेगा का बहुत हाईली रेस्पेक्ट दिखा रहा है, आप उसको लिया करो। जब मैंने उसको लिया तो मैंने मसल्स जो क्रैम्पिंग हो रहा था ठीक हो गया। किसी प्रकार का मेडिसिन मेरे को काम नहीं किया। आपके डीएनए की जो जानकारियां हैं उसको हम लोग शेयर करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। सर आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।